ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد صدق الله مولانا العظيم. عزیزان گرامی اور حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے جو بھی عبادتیں مقرر کی ہے ان میں سے بعض نہایت ہی ہدایت و فنائیت پر مبنی اور عاشقانہ شان رکھتے ہیں. انہی عبادتوں میں سے ایک عبادت اعتکاف کی بھی عبادت ہے. اعتکاف مسلمان سمجھدار مرد کا مسجد میں اور مسلمان سمجھدار عورت کا اپنے گھر میں عبادت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف توڑنے والی چیزوں سے بچتے ہوئے رکے رہنے کا اور ٹھہرے رہنے کا نام اعتکاف ہے. یہ اعتکاف کوئی نئی عبادت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ اعتکاف صرف اسلام کے ساتھ خاص ہے، بلکہ یہ اعتکاف پچھلی قوموں میں بھی اور پچھلی شریعتوں میں بھی تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ تم دونوں مسجد کو صاف ستھرا رکھو نماز پڑھنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اعتکاف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا، بلکہ اس کے بعد بھی اعتکاف کا تصور ہے. حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوئی تو ان کی ماں منت مان چکی تھی، نظر مان چکی تھی کہ اگر مجھے بیٹا پیدا ہوا تو میں اس کو بیت المقدس کی صفائی ستھرائی کے لیے، اس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. لیکن جب پیدا ہوا بچہ تو وہ لڑکا نہیں تھا، لڑکی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو ہی اپنے گھر کی خدمت کے لیے قبول کر لیا اور وہ حضرت مریم تھی. چنانچہ حضرت مریم کے جو خالو تھے وہ مسجد کے امام تھے حضرت زکریا. لے جا کر کے انہوں نے حضرت مریم کو مسجد کے اندر، مسجد اقصی کے اندر ایک خاص مقام پر ٹھہرا دیا جو اوپری حصے میں تھا. وہیں پر ان کا کھانا لے جا کر کے دیا جاتا تھا اور سارا کچھ وہیں لے جا کر کے رکھا جاتا تھا، اس کا سارا انتظام ہوتا تھا. علامہ ابن تیمیہ نے لکھا کہ یہ بھی ایک طرح کا اعتکاف تھا جو حضرت مریم مسجد اقصی کے اوپری حصے میں رہ کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار اور عبادت کیا کرتے. تو یہ اعتکاف کوئی ایسا نہیں کہ صرف ہمارے اسلام میں اور ہماری شریعت میں ہے، بلکہ یہ پچھلی امتوں میں، پچھلی قوموں میں بھی تھا. اور زمانے جاہلیت کو بھی ملت ابراہیمی سے جو چیزیں اور جو احکام ہاتھ لگے اس میں یہ اعتکاف بھی. یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں ایک اعتکاف کی منت مانی تھی. جب اسلام لایا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے اعتکاف کی منت جاہلیت کے زمانے میں مانی تھی، کیا اس کا پورا کرنا ضروری ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوف بنذرک، اپنے منت کو پورا کرو. اس سے پتہ چلا کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی اعتکاف، یہ جو اعتکاف
सिलसिला और चला आ रहा था पिछली उम्मतों से, इस्लाम ने भी इस एहतिकाफ के तसव्वुर को और इस इबादत को बाकी रखा। अलबत्ता ये मसनून एहतिकाफ की इब्तिदा कब हुई, इस सिलसिले में कोई सराहत नहीं मिलती है। अलबत्ता बाज़ उलमा के इशारे से ऐसा मालूम होता है कि सन 2 हिजरी में जब रोजे की फर्जियत हुई, साथ ही साथ एहतिकाफ भी मसनून हुआ। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुखारी शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से मदीना गए हिजरत करके, तब से एहतिकाफ नहीं छोड़ा हत्ता कि दुनिया से रुखसत हो गई। जब तक जिंदगी बाकी रही, पूरी जिंदगी एहतिकाफ करते रहे। और आपके बाद आपकी बीवियों ने एहतिकाफ के इस इबादत को अपना मामूल बनाकर रखा और इस इबादत के पूरी तरह से इस पर अमल किया। और सहाबा के बाद आप सल्लल्लाहु की बीवियों के बाद में सहाबा ने भी इस पर अमल किया है और आज तक पूरी उम्मत इस्लामिया इस पर अमल करती आ रही है। यही वजह है कि आज भी एहतिकाफ करने का हमारी मसाजिद के अंदर इहतमाम किया जाता है और इसका इंतजाम किया जाता है। एहतिकाफ ये बहुत अहम इबादत है। इसकी अहमियत को बयान करने के लिए सिर्फ इतना बता देना काफी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी अमल शुरू फरमाते तो उसको कभी करते कभी छोड़ते, लेकिन एहतिकाफ एक ऐसा अमल है कि जिसको जब से शुरू किया मरने तक इसको नहीं छोड़ा, मरने तक नहीं छोड़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अगर कोई मजबूरी पेश आई जिसकी वजह से आप रमजान में एहतिकाफ न कर सके, तो दूसरे दिनों में रमजान के बाद आपने शव्वाल में एहतिकाफ किया। और तभी ऐसा हुआ कि जंग वगैरह की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी साल एहतिकाफ न कर सके, तो अगले साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 दिन के बजाय 20 दिन का एहतिकाफ किया। यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि जिस साल आप वफात पाए उस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 20 दिन का एहतिकाफ किया था। उलमा ने लिखा है कि चूंकि इससे पहले वाले रमजान के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 10 दिनों का एहतिकाफ किसी मजबूरी से छूट गया था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तलाफी के लिए 10 दिन और इजाफा करके 20 दिन का एहतिकाफ किया। तो इस एहतिकाफ की अहमियत को बयान करने के लिए बस इतनी बात काफी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर बड़े एहतिमाम के साथ और बड़ी पाबंदी के साथ अमल किया। लेकिन कुर्बान जाओ अल्लाह के नबी पर, अल्लाह के नबी ने इसके अलावा और भी बहुत सारी फजीलतें बयान फरमाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा रमजान मुबारक के आखिरी अशरे का एहतिकाफ करता है, अल्लाह ताला उसके दरमियान और जहन्नम के दरमियान 3 खंदक हायल फरमा देता है, 3 खंदकों की दूरी पैदा कर देता है। और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि हर खंदक की दूरी आसमान और जमीन की दूरी के बराबर है। यानी मतलब ये हुआ कि अगर कोई आदमी एहतिकाफ करेगा तो उसको इस आसमान और जमीन की जो दूरी है, इस दूरी के 3 गुना बराबर जहन्नम से उसको दूर कर दिया जाएगा। मतलब ये है कि वो बंदा जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। और इसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, आखिरी अशरे का जो बंदा भी एहतिकाफ करेगा काना कहज्जतैन व उम्रतैन, गोया उसने दो मकबूल हज किया और 2 मकबूल उम्रा किया। तो एक बंदा हजारों हजार पैसा लगा करके, लाखों लाख पैसा लगा करके, हजारों तरह की परेशानियां झेल करके हज करने जाता है और हज करके परेशानियां उठा करके आता है। जिस हज के बारे में कोई बंदा ये नहीं कर सकता गारंटी के साथ कि हमारी हज वो मकबूल भी हो गई, हमारी हज वो मकबूल भी हो गई। इतना पैसा लगाने के बाद, इतनी मेहनत के बावजूद भी उसका सवाब एक तरह से यकीनी नहीं रहता। लेकिन एहतिकाफ न इसमें किसी तरह का कोई पैसा है और न इसमें किसी तरह की कोई परेशानी है, न कोई दिक्कत है, न कोई दुश्वारी है। बंदा बजाय घर के मस्जिद में आके बैठा हुआ है, उसको जो है अल्लाह ताला एक नहीं 2 हज का सवाब दे रहा है, 2 उम्रे का सवाब दे रहा है। और शायद इसी वजह से सहाबा किराम ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी पूरी जिंदगी पाबंदी फरमाई और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उम्मत इस्लामिया इस पर अमल करते आई है और अमल करती रही है। लेकिन इधर कुछ जमानों से देखा जा रहा है, कुछ सालों से देखा जा रहा है कि लोगों को रोजा
में तो कुछ न कुछ रग़बत है, दूसरे इबादत में कुछ न कुछ रग़बत है, लेकिन इस एतकाफ जैसी अहम सुन्नत से लोगों में एक तरह की बेरग़बती पैदा होती जा रही है। लोग इसको फजूल की चीज समझते हैं, वक्त का ज़िया समझते हैं, वक्त की बर्बादी समझते हैं, और ये समझते हैं कि अगर हम एतकाफ में बैठ गए तो हमारा जो है बिजनेस का घाटा हो जाएगा, हमारे व्यापार में घाटा हो जाएगा, हमारा खाना पीना कौन ला करके देगा। बहुत सारी चीजों को बुनियाद बना करके और ऐसी चीजों को बुनियाद बना करके जो कोई बात नहीं रखती, कोई अहमियत नहीं रखती, इस बड़ी अहम सुन्नत से वो महरूम हो जाता है। और आज के इस आजादी के दौर में तो कोई एतकाफ का सोचता भी नहीं है। वो ये समझता है कि मस्जिद में बैठ जाने का मतलब ये है कि कहीं घूमने फिरने को नहीं मिलेगा, कहीं दौड़ भाग करने को नहीं मिलेगा, इधर उधर के अखबासात बकवासात और फजूलियात में वक्त गुजारने को, होटलों में वक्त बिताने को मौका नहीं मिलेगा। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि इस कदर अहम इबादत से हम लोगों की इस कदर बेरग़बती हो रही है और हम इस कदर दूर होते जा रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि जिस तरह से पूरी उम्मत ने इसको अब तक पकड़े रखा है, इस पर पूरी पाबंदी से अमल किया है, आइंदा हम भी इस अमल को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इस एतकाफ के अंदर अल्लाह ताला ने जहाँ ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत, इसके अलावा हजार फायदे, इसके अलावा इसमें हजार फायदे हैं कि अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होता है एतकाफ के अंदर रहने से। और जब इंसान एतकाफ के अंदर बैठता है तो आप तजर्बा कीजिएगा, वो आदमी गुनाहों से भी बचता है। अगर वो मस्जिद में ना बैठा हो, बाहर हो, हजार तरह के गुनाह है, वो हजार तरह के गुनाह में वो फंस सकता है, झगड़ा में फंस सकता है, गीबत में फंस सकता है, लेकिन इस एतकाफ की बरकत से इंसान को ये फायदा हासिल होता है कि वो इस तरह की गलत चीजों से आसानी बच जाता है। और यही नहीं कि वो गुनाहों से बचता है, बल्कि उसका ये अमल मस्जिद में होने की वजह से हर तरह का अमल, उसका खाना पीना सोना उठना बैठना सारा का सारा इबादत में शुमार होता है, सारा का सारा इबादत में शुमार होता है। बंदा अगर खा भी रहा है फिर भी वो इबादत कर रहा है, सो रहा है फिर भी इबादत कर रहा है। और इसका एक बड़ा फायदा ये होता है कि लैलतुल क़द्र जो 1000 रातों से अफजल है, 1000 महीनों से अफजल है, लैलतुल क़द्र जो है ना आखिर आशरे में ही पाई जाती है। बंदे को लैलतुल क़द्र नसीब हो जाती है, क्योंकि बंदा चाहे सोया भी हुआ हो एतकाफ की हालत में, वो इबादत की हालत में है, वो एतकाफ को उसने इबादत के क़द्र लैलतुल क़द्र को इबादत की हालत में पा लिया। तो इसके अलावा इसमें और भी हजार फायदे हैं। और मुसलमान के लिए तो बस यही काफी थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक महबूब तरीन सुन्नत है, लेकिन इसके अलावा और भी इसमें हजार फायदे हैं। इसलिए आदमी को इस चीज का एहतमाम करना चाहिए और इसकी अहमियत को समझते हुए इसकी पाबंदी करनी चाहिए। हाँ, एतकाफ के ताल्लुक से उलमा ने कुछ शर्तें बयान की है कि एतकाफ जो है हर आदमी नहीं कर सकता। एतकाफ के लिए कुछ शरायत है। एतकाफ के लिए शर्त ये है कि वो मुसलमान हो, काफिरों पर कोई इबादत नहीं, ऐसे ही एतकाफ भी नहीं। गैर मुस्लिमों पर एतकाफ नहीं है, अगर वो एतकाफ करे उसका एतकाफ दुरुस्त नहीं। ऐसे ही इंसान का आकिल होना जरूरी है, समझदार हो। अगर समझदार ना होगा तो फिर उसका एतकाफ दुरुस्त नहीं। मिसाल के तौर पर कोई पागल है, उसका एतकाफ दुरुस्त नहीं। या एक कोई ऐसा बच्चा है जिसमें समझ है ही नहीं, अभी नासमझ बच्चा है, उसका भी एतकाफ नहीं। हाँ, बालिग होना शर्त नहीं है। यही वजह है कि अगर कोई समझदार बच्चा भी है तो वो एतकाफ कर सकता है, उसका एतकाफ दुरुस्त है। और ऐसे ही मर्द होना भी कोई जरूरी नहीं है। मर्द होना एतकाफ के सही होने के लिए कोई जरूरी नहीं है, औरत भी एतकाफ कर सकती है। इसलिए फुक़हा ने लिखा है कि औरतों के अंदर भी एतकाफ की रग़बत डालनी चाहिए और उनको भी घर में एतकाफ का एहतमाम करवाना चाहिए। और उनके लिए एतकाफ करना बड़ा आसान है कि वो जो जगह अपने नमाज के लिए मुकर्रर कर रखी है उसी जगह पर बैठ करके एतकाफ करे, घर की लड़कियों से काम काज भी लेती रहे और एतकाफ का सवाब भी हासिल करती है, एतकाफ का सवाब भी हासिल करती है। और एतकाफ के लिए एक बुनियादी शर्त मस्जिद का होना है। अगर आप घर पे एतकाफ करें, औरत तो घर पर एतकाफ कर सकती है, मर्द के लिए शर्त यह है कि वो मस्जिद में एतकाफ करे।
मस्जिद में एहतिकाफ करे। मस्जिद के अलावा आप कहीं भी एहतिकाफ करें, वो एहतिकाफ दुरुस्त नहीं, वो एहतिकाफ दुरुस्त नहीं। मस्जिद का होना शर्त है, और मस्जिद भी ऐसी जिसमें 5 वक्त नमाज होती है। अगर कोई ऐसी मस्जिद है एक आध नमाजें उसमें पढ़ दी जाती है, फिर उसमें एहतिकाफ दुरुस्त नहीं। इससे ईदगाह का मसला भी निकल आया कि उसमें जो है सिर्फ ईद की नमाज पढ़ी जाती है, 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ी जाती। इसलिए कोई एहतिकाफ ईदगाह में करना चाहे जहाँ 5 वक्त नमाज नहीं होती है, उसका एहतिकाफ दुरुस्त नहीं। तो एहतिकाफ के लिए एक बुनियादी शर्त ये है कि आदमी मस्जिद में करे, क्योंकि मस्जिद के अलावा दीगर जगहों पर इबादत ये एहतिकाफ जायज नहीं है। लेकिन ये मस्जिद की जहाँ शर्त हम बयान कर रहे हैं, वही एक तफसील आप ये भी समझ लीजिएगा, जिसमें आम तौर पर हमारे यहाँ बड़ी कोताही होती है, लोग इसको बयान भी नहीं करते हैं। वो ये कि मस्जिद बोलते किसको? हम लोग ये समझते हैं कि मस्जिद सारा अहाता मस्जिद, ऐसा नहीं है। मस्जिद वही जगह है जहाँ कभी भी नमाज होती हो या हो सकती हो, वही हिस्सा मस्जिद है। जो मस्जिद नमाज के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि नमाजियों की दूसरी जरूरतों के लिए बनाई गई, वो मस्जिद का हिस्सा नहीं है, मस्जिद का वो हिस्सा नहीं है। लिहाजा अगर कोई इमाम के रहने के लिए अलग घर बनाया गया, इमाम के घर में जाकर के एहतिकाफ कर ले, उसके कमरे में एहतिकाफ कर ले, उसका एहतिकाफ दुरुस्त नहीं। वजू खाने की जगह, बैतुल खाना, पेशाब खाना, ये मस्जिद का हिस्सा नहीं है। वहां न एहतिकाफ दुरुस्त है और न किसी एहतिकाफ करने वाले के लिए जाना जायज है। अगर कोई बिला जरूरत के वैसी जगहों पर जाए तो जैसे बाहर निकलने से एहतिकाफ टूट जाता है, वैसे ही पेशाब पैखाने की जगहों पर भी बिला जरूरत के जाने से एहतिकाफ टूट जाएगा। वो मस्जिद का हिस्सा नहीं। इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। हमारे यहाँ होता क्या है कि लोग एहतिकाफ अव्वलन तो करते नहीं, जो लोग करते हैं वो मसाइल से वाकिफ नहीं होते, और नतीजा ये होता है कि एहतिकाफ किए हुए हैं और जहाँ थक गया दिमाग, उठते हैं पढ़ लिख करके, जा करके वजू खाने पर बकवास करते हैं, दूसरे लोगों के साथ बात करते हैं। इससे उनका एहतिकाफ खत्म हो जाएगा, एहतिकाफ फासिद हो जाएगा, क्योंकि वो जगह मस्जिद में शुमार नहीं होती है। ऐसे ही जो जगह मस्जिद का सामान वगैरह रखने के लिए बनाई गई है, मस्जिद के अहाते में ही है, लेकिन वहां नमाज नहीं होती है, मस्जिद का सामान वगैरह रखने के लिए बनाई गई है, वो भी मस्जिद शुमार नहीं होगी। वहां पर भी बिला जरूरत जाने की वजह से एहतिकाफ टूट जाएगा, उस आदमी का एहतिकाफ खत्म हो जाएगा। इसलिए मस्जिद में करना शर्त है, और मस्जिद की जो तारीफ है, मस्जिद का जो डिफिनेशन है, यही है कि जहां नमाज कभी भी होती हो वो जगह मस्जिद शुमार होगी, और जहां कभी नमाज ही अदा नहीं की जाती वो मस्जिद नहीं है। इसलिए जो लोग एहतिकाफ करते हैं वो इन बातों का ख्याल रखें कि किन किन जरूरतों की वजह से निकला जा सकता है और कहाँ निकला जा सकता है। जो लोग एहतिकाफ करते हैं, फुक़हा ने लिखा कि वो 3 जरूरतों की वजह से निकल, बिला जरूरत तो निकलना जायज ही नहीं है। 3 तरह की जरूरतों से निकल सकते हैं। एक इंसानी जरूरत, दूसरे शरीर जरूरत, तीसरे हंगामी जरूरत। इंसानी जरूरत की वजह से इंसान मस्जिद से बाहर निकल सकता है। इंसानी जरूरत मिसाल के तौर पर खाना लाने वाला कोई नहीं है, कोई खाना ला के नहीं देने वाला, खाने पीने के लिए घर जा सकता है और खाने के वक्त वहां बिता करके चुपचाप आ सकता है। या मिसाल के तौर पर जिस मस्जिद में एहतिकाफ किया हुआ है वहां पेशाब पैखाने करने का कोई इंतजाम नहीं है, तो पेशाब पैखाना ये इंसानी जरूरत है, इसके लिए इंसान उतने देर के लिए निकल सकता है जितना देर में वो पेशाब पैखाना कर सके। तो एक तो इंसानी जरूरत से निकल सकता है, दूसरे इंसान शरीर जरूरत से निकल सकता है। शरीर जरूरत क्या है? मिसाल के तौर पर जिस मस्जिद में एहतिकाफ किया है वहां जुमा नहीं होती है, जुमे की नमाज नहीं होती, तो ऐसा बंदा दूसरी मस्जिद में एहतिकाफ की हालत में जुमा की नमाज अदा करने के लिए जुमा की नमाज के वक्त जा सकता है। अगर वहां जुमा पढ़ने के बाद, सुन्नत पढ़ने के बाद बिला जरूरत रुका हुआ है, उसका एहतिकाफ फासिद हो जाएगा।
اور تیسری جس ضرورت کی وجہ سے بندہ مسجد سے نکل سکتا ہے وہ ضرورت ہنگامی ضرورت ہے، اضطراری ضرورت۔ اضطراری ضرورت کیا ہے؟ مثال کے طور پر جس مسجد میں اعتکاف کیا آگ لگ گئی، ایسی صورت میں وہ بندہ مسجد سے نکل سکتا ہے، یا وہ مسجد گر گئی، ایسی صورت میں بندہ مسجد سے نکل سکتا ہے۔ یہ تین طرح کی ضرورتیں ہیں، یہ تین طرح کی ضرورتیں، انہی تین ضرورتوں کی وجہ سے مسجد سے نکل سکتا ہے۔ ان تین کے علاوہ کسی بھی ضرورت سے بندہ مسجد سے نہیں نکل سکتا۔ اس میں ایک چیز اور بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں جو عام طور پر ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، ایک ہے بیڑی پینا۔ یہ کون سی ضرورت ہے؟ بیڑی پینے کے لیے لوگ مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں، جو اعتکاف کی جگہ نہیں ہے وہاں چلے جاتے ہیں۔ بیڑی پینے کو فقہاء نے ضرورت میں شمار نہیں کیا، یہ انسانی ضرورت میں داخل نہیں۔ اس لیے اگر کوئی بیڑی پینے کے لیے مسجد سے باہر نکل رہا ہے، ایسی جگہوں پہ جا رہا ہے جہاں اعتکاف نہیں کیا جا سکتا، اس سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، ایک صورت فقہاء نے لکھی ہے، وہ یہ لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی انسانی کسی ضرورت کی وجہ سے یا شرعی کسی ضرورت کی وجہ سے باہر نکلا ہوا تھا، اسی دوران اس نے کیا کر لیا، بیڑی پی لیا، تو پھر اس کی گنجائش ہے، البتہ خالص بیڑی پینے کے لیے باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندے کو پیشاب پیخانہ لگا ہوا تھا، لیٹرین گیا اور وہی بیڑی بھی دھوک دیا، تو اس کی اجازت ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیڑی پینا کتنا مبارک عمل ہے کہ وہ مبارک جگہ پہ ہی جائز ہے۔ پیشاب پیخانہ کی جو جگہ ہے، جو نہایت مقدس جگہ ہے، وہیں پر یہ کر سکتے ہیں، وہ بھی خالص بیڑی کی ضرورت کے لیے نہیں جا سکتے ہیں۔ آپ پیشاب پیخانے کی ضرورت کے لیے گئے ہیں تو وہاں اگر بیڑی آپ پی رہے ہیں تو پی سکتے ہیں۔ اور فقہاء نے ایک اور آدمی کے لیے اجازت دی ہے، اور وہ آدمی ہے کہ جس کو بیڑی کی ایسی لت لگ گئی ہے کہ اگر بیڑی نہ پیتا ہے تو وہ بیمار پڑ جاتا ہے، اس کی حالت جو ہے ٹائٹ ہو جاتی ہے، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کو ایسی لت لگ گئی ہے تو پھر یہ انسانی ضرورت میں داخل ہو گئی، اور ایسی صورت میں فقہاء نے اجازت دی۔ ورنہ یہ دو جو سچویشن ہے، اس کے علاوہ کسی تیسری صورت میں جائز نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ اعتکاف کر رہے ہیں، اعتکاف کیجئے، البتہ ان شرائط کا، ان امور کا خیال رہنا چاہیے، تبھی اعتکاف ہوتا ہے۔ ورنہ مسجد میں بیٹھنا صرف مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اعتکاف کر کے انسان اپنا تعلق اپنا رب اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرے، اور اللہ سے تعلق اور رب تبھی مضبوط ہوگا، ان سے تعلق تبھی مضبوط ہوگا، اللہ سے محبت تبھی پیدا ہوگی جب اللہ تعالیٰ نے جو امور اپنے محبت کے لیے بتلائے ہیں، جو چیزیں بتلائے ہیں، اس میں اپنے اوقات گزرے۔ مثال کے طور پر آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا پورا دن عبادات کی چیزوں میں گزرنا چاہیے، نماز میں گزرے، تلاوت میں گزرے، ذکر و اذکار میں گزرے، اور دوسرے اعمال میں گزرے۔ دنیاوی گفتگو کے اندر اور بکواس کے اندر بہت سی جگہوں پر دیکھا جاتا ہے، لوگ گھیرا بندی کر دیتے ہیں اور وہاں سے نکل کر کے باہر مسجد میں دوسری جگہ پر بیٹھ کر کے دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ اعتکاف اس سے ٹوٹے گا تو نہیں، البتہ یہ ہے کہ اعتکاف کا کوئی مطلب بھی نہیں رہ جاتا ہے، کیونکہ اعتکاف کی حقیقت حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ دنیا سے اور مخلوقات سے اپنا پورا رشتہ توڑ کر کے کچھ دنوں کے لیے اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لے، کہ بس وہ ہو اور اس کا خدا ہو، یہ اپنا دکھڑا سنائے اور اللہ سے حل کروائے، کوئی تیسرا بیچ میں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بعض فقہاء نے کہا ہے کہ موبائل اعتکاف کی حالت میں موبائل استعمال کرنا یہ بہتر نہیں، کیونکہ ایک طرح سے اللہ اور بندے کے درمیان میں ایک تیسری چیز آ گئی۔ اس لیے جب آپ اعتکاف میں بیٹھے تھے ان چیزوں کا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعتکاف کی اہمیت سمجھتے ہوئے اس کے شرائط آداب کا خیال رکھتے ہوئے اعتکاف کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا۔